Okay, are all the students there? Should we start or should we wait for the other students to join? Are all the students there? Okay, I can see Babicha is there, Rajiv is there, Ujjwal is there. Okay, please ask in the group for the other students. Just a minute. We'll wait for 5 minutes for the other students to join and then we'll start the session, right? Okay. Okay, how is your work going, Babicha? Babicha, can you hear me? Yes, Rajiv, how's your work going? Sir, very smooth. Okay. So what you are planning for to take as a topic for your project? Have you thought of some topic for your project? Right now, I didn't thought about it. Okay. Okay. Yes, Ujjwal, how about you? Yes, sir. How's your work going? So fine. Okay, good. Good. So what is your expectation out of Masters in Public Health? What do you want to become? What do you want to do? Yes, Ujjwal. Sir, actually, I am also working a job NHM Tripura, Okay. RBS के program manager. Okay. Actually, sir, मैं और बाहर जाने के लिए और डिग्री को बढ़ाने के लिए और एज ए एपिडेमियोलॉजिस्ट यूनिसेफ और WHO इसी को ज्वाइन करने के लिए शायद सोच रहा हूँ इसलिए. Okay. Fine. Okay. Fine. So, have you gone through the last lecture? Yes, sir. Huh? Yes, sir. Okay. तो उसमें कोई डाउट्स, पिछली क्लास में कोई डाउट्स? नहीं सर, ऑल क्लियर. ओके, गुड. सर एक्चुअली एक डाउट था, मैंने 2-3 दिन पहले स्टडी किया था, तो तब एक्चुअली डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च ये डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट दिखा रहा है. वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च पे हम आएंगे. वो डिपेंड करता है कि आपका क्वालिटेटिव रिसर्च है, क्वांटिटेटिव रिसर्च है. कुछ लोग उसको फिनोलॉजिकल रिसर्च या पॉजिटिविस्टिक रिसर्च बोलते हैं, है ना. फिर कुछ जगहों पे उसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बोलते हैं, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बोलते हैं. तो ये अलग अलग नॉमेनक्लेचर्स हैं. तो हम अभी जाएंगे, क्योंकि देखो रिसर्च समझने के लिए बायोस्टैट्स की भी नॉलेज होनी जरूरी है ना. तो उसको मैं टोटलिटी में इसको हम थोड़ा समझेंगे. Okay. Can we start the class then now? Yes, sir. Okay. So we were discussing about research in total, है ना, कि रिसर्च क्या होता है. तो हमने थोड़ा सा बात किया था. तो रिसर्च बेसिकली हमने जैसे डिफाइन किया था, इट इज अ सर्च फॉर नॉलेज. अब मान लीजिए कि हम कोविड-19 की बात कर रहे हैं. तो मैं अगर एक अच्छा पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल बनना चाहता हूं, if I want to become a good public health professional, how research is going to help me, and which all areas should I know as a public health professional so that I can do exceedingly well. For example, अगर कल को आपको सपना है कि मेरे को सर WHO में काम करना है, या मुझे कहीं और जगह पे काम करना है ना, I want to work as an independent consultant in one of the top organizations.
So how research and biostats is going to help you? Can anybody of you explain with some example? एक पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल को जिसने भी एमपीएच किया है तो उसको किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, है ना, रिसर्च के अंदर किस तरीके की नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो एक अच्छा पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल बन सके और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सके। आप लोग सब कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ जरूर अंडरस्टैंडिंग होगा। यस यस बबीचा। Yes, sir. Yes. How why you should understand research, or if you want to become one of the consultant in WHO, how research and all these things is going to help you. मैं particularly public health as a public health professional बात कर रहा हूँ। आपका क्या profession है बेटा? What is your profession? As for now, currently I am working in journal manager under the CMHA program. You are working as a general manager in? Journal manager. Journal manager. Okay. Yeah. Where? In Manipur only. Manipur only. Okay. Yeah. Journal manager. What is the name of the organization? CM organization means I work under the CM Health program. CM Health program in Manipur. Yeah. So who is the chief minister now? Previously it was Ibobi Singh. Who is now the CM? For now, Biren for BJP. Biren Singh. Eh? Okay. Yeah. Okay. So now you are already working in the public health domain, okay, under the CM Health. So how research is going to help? Okay, ये subject आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट को आप कैसे प्रैक्टिकली सीखेंगे? हाउ विल यू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट प्रैक्टिकली सो दैट यू बिकम अ एफिशिएंट पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल और अ मैनेजर? यस, क्योंकि ये देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा है, बिकॉज सी आई डोंट वांट टू, आई एम नॉट वेरी थ्योरेटिकल टीचर, है ना, आई वांट टू गिव प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ताकि आप कॉन्सेप्ट को दिमाग में उतार लें और फिर उसके हिसाब से अपने करियर को बनाएं। यस सर, है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो तो पेपर पास वैसे भी हो जाएगा, 70% नंबर भी आ जाएंगे, बट अगर वो रियल क्रक्स एंड नॉलेज अगर नहीं मिलेगा तो इट इज ऑफ नो यूज, है ना, दिस डिग्री विल बी ऑफ नो यूज। हाँ सर। तो क्या लगता है आपको? यस Sir, as COVID being an example, yes, it is because of this research that we came to know about the mode of transmission in COVID, and regarding the vaccine also. It is because of this research we came to a final conclusion as of now that vaccination can be the only way to stop this pandemic and all. बट वैक्सीनेशन वाज देयर सिंस अ लॉन्ग टाइम, ये तो सबको ही पता है, जैसे पोलियो के लिए भी वैक्सीन बना है, तो ये तो सबको पता है। बट माय क्वेश्चन इज वेरी, सी व्हाट आई एम आस्किंग यू राजीव, व्हाट इज योर, इन विच एरिया यू आर वर्किंग, कहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं? I'm working in a private hospital in maternity and child health. You are working in MCH, right? And what is your background? I'm from Ayush, homeopathic practitioner. So you are done homeopathy and now you are working as a doctor in a maternal and child health, right? ठीक है, अब आप MPH कर रहे हैं, तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि रिसर्च का बैकग्राउंड आपको ये सब्जेक्ट कैसे हेल्प करेगा एज अ पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल कि आप कल को WHO में चले जाए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? क्योंकि देखिए, मैं आपको डेफिनेशन बता सकता हूं, मैं आपको इसका तरीका बता, वो फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, बट आपको लगेगा सर मैंने ये 5.5 साल होम्योपैथी पढ़ लिया, अब मैं कहीं पे एज अ डॉक्टर काम कर रहा हूँ। भाई इशू क्या है? इंडियन, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन इंडियन सोसाइटी? सी आई एम इन अब्रॉड, है ना, मैं यहाँ पे मैंने वर्ल्ड का एक कोना यहाँ पे देखा है, वेस्टर्न कंट्रीज में हम लोग देखते हैं और इंडिया में देखते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये एक पूरा सब कॉन्टिनेंट है ना, जहाँ पे ह्यूज पॉपुलेशन है और हेल्थ की अलग अलग समस्याएं हैं, राइट?
ऑल ऑफ यू एग्री विद मी, है ना? Yes. तो मैं ये थोड़ा समझना चाहता हूँ आप लोगों से। सर मैं कुछ बोलूं? हाँ बेटा बोलो। सर एक्चुअली मेरे जो काम के हिसाब से एक्चुअली सर या का फर्स्ट मेरे को एक्चुअली एज ए वर्किंग पब्लिक हेल्थ, तो फर्स्ट मेरे को जानना चाहिए मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ, जहाँ पे काम करूँ, उसका फर्स्ट एपिडेमियोलॉजी, बायोस्टैटिस्टिक्स, हेल्थ इकोनॉमी, एनवायरमेंटल हेल्थ और पब्लिक पॉलिसी भी क्या है, पब्लिक का जो बिहेवियर वो भी क्या है। ओके, तो तुमने मेरे को 5-6 चीजें गिनवाई। तुमने कहा कि सर मेरे को ये पता होना चाहिए कि एपिडेमियोलॉजी क्या है उस जगह की, है ना? तुमने ये कहा मेरे को कि वहां का बायोस्टैटिस्टिक्स कि क्या क्या हिसाब किताब है। तुमने मेरे को ये कहा कि लोगों का बिहेवियर कैसा है। यस सर। ठीक है ना? तो अब मैं इसको देखिए, पब्लिक हेल्थ आप क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, ये चीजों को अच्छी तरह समझ लो, है ना? यस चानू, मोइरंगथेम मारिया चानू, कैन यू हेयर मी? Yes, sir. यस, हाउ आर यू? Fine. ओके, तो आपका क्या बैकग्राउंड है बेटा? व्हाट हैव यू डन? BSc nursing. BSc nursing, and you are working as a nurse? No, sir. I'm working as a project, health project Health project manager or what? manager Manager where? in Manipur. So all of you, majority of you are from Manipur, huh? Okay. Because northeast में health का बहुत requirement है, health education, है ना? It is one of the very important components for human development index. तो इसको आप इस तरीके से समझिए कि पब्लिक हेल्थ बेसिकली क्या होता है? पब्लिक हेल्थ होता है कि मैनेजिंग द हेल्थ ऑफ अ पॉपुलेशन, है ना? तो मैनेजिंग द हेल्थ ऑफ अ पॉपुलेशन का मतलब होता है कि मैनेज, अगर लिखा मैनेज, तो मैनेज का क्या मतलब होता है? तो अगर मैं मान लीजिए मैं लिखता हूं कि हैव टू मैनेज द हेल्थ, तो मैनेजिंग द हेल्थ का मतलब होता है कि मैंने मैनेज को तोड़ दिया, तो मैंने कहा मैनेज मेन एंड टी, मैनेजमेंट 3 शब्दों को मिला के बना है, 3 वर्ड्स को, है ना? मैनेज मैंने अलग कर दिया, मेन मैंने अलग कर दिया, टी मैंने अलग कर दिया। ऑल ऑफ यू एग्री? यस सर। है ना? अब मैनेजिंग में जो मेन है, मेन को मैंने रिप्लेस कर दिया रिसोर्सेस से। नाउ दिस रिसोर्स कैन बी अ ह्यूमन रिसोर्स, दिस रिसोर्स कैन बी अ फाइनेंशियल रिसोर्स, this resource can be a infrastructure resource, this resource can be vaccine, these resource can be medicine. So you have to manage these resources effectively and efficiently. effectively and efficiently में क्या डिफरेंस होता है कि जब आपको वो चीज चाहिए तो आपको तुरंत मिले, और वो सभी लोग irrespective of caste, creed, religion सभी इस्तेमाल कर सके और सही टाइम पे इस्तेमाल कर सके। Do you all agree? यस सर। है ना? तो अगर मैं मैनेजमेंट को इन 3 शब्दों में अगर तोड़ दूं, और अगर मेरे पास में मान लीजिए मणिपुर के अंदर देयर इज अ होल पॉपुलेशन, है ना? देयर आर पीपल हु आर लिविंग इन इम्फाल, देयर आर पीपल लिविंग इन द अदर हिली एरियाज, देयर आर पीपल हु आर लिविंग इन द बॉर्डर एरियाज। तो क्या सभी को इक्विटेबल हेल्थ केयर मिल सकता है क्या? No, sir. नहीं सर। नहीं, मिलना चाहिए। पहली बात है, देखो 2 चीजें, मिलना चाहिए। यस सर। दूसरा सवाल होता है क्या मिलता है, क्या मिलता नहीं है ना? ठीक है। अब अगर आप एक पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल हैं तो आपको ये देखना है कि क्यों नहीं मिलता, किनको नहीं मिलता। तो ये सवाल 5 चीजें आ गई, किनको नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता, कब नहीं मिलता, है ना? कैसे नहीं मिलता, ठीक है ना? तो कब, क्यों, कहां, कैसे और क्या नहीं मिलता। Why, when, where, what and how. All of you agree with me? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? अब आप मान के चलिए
कि हेल्थ सबका एक राइट है, हेल्थ इज नॉट अ नीड। पहले के जमाने में क्या होता था कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड नीड बेस्ड अप्रोच एंड राइट बेस्ड अप्रोच। नीड बेस्ड अप्रोच में हम बोलते थे कि अरे यार बेचारा गरीब है, दे दो उसको। जब आप राइट की बात करते हैं और अगर आपने उस स्टेट में जन्म लिया है, उस कंट्री में जन्म लिया है, तो आपका ये मौलिक अधिकार है, इट इज योर बर्थ राइट दैट यू शुड गेट द right to health, है ना? That is the other story, that why the government is unable to provide it, why the children have got malnutrition, why the state, why the any of the states lack in so many index। अब जैसे आप अगर आंगनवाड़ी वर्कर को देखोगे, अब अगर सपोज आप मणिपुर की बात कीजिए, तो मणिपुर में आपने कहा सर हेल्थ गांव के अंदर और शहर के अंदर बहुत डिफरेंट है। तो मैंने कहा क्यों डिफरेंट है? तो आपने कहा सर देखिए गांव में हॉस्पिटल नहीं होते हैं, गांव के अंदर दवाइयां नहीं होती हैं, डॉक्टर नहीं होता है, स्टाफ नहीं होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होती है, मेडिसिन नहीं होती है, मशीन्स नहीं होती है। ऑल ऑफ यू एग्री? यस सर। है ना? Yes, sir. तो Yes. दैट मीन्स, हाँ. और सर शहर में होते तो हैं, पर शहर में भी उतने अच्छे नहीं होते जितना प्राइवेट में अच्छे होते हैं। क्योंकि अगर सरकारी अस्पताल में या सरकारी सुविधाओं में if the things would have been so much good, then why the people go to private hospitals then? Isn't it? यस सर। मणिपुर से ज्यादातर लोग पहले क्या थे, मणिपुर या नॉर्थ ईस्ट से पहले लोग कैलकाटा की तरफ आते थे। धीरे धीरे जैसे आपका आसाम डेवलप हुआ, गुवाहाटी डेवलप हुआ, तो अब लोग ज्यादा से ज्यादा गुवाहाटी की तरफ जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में। एग्री? हाँ सर। ना? हाँ, agree. तो आप देखेंगे कि ओवर द ईयर थिंग्स आर स्लोली एंड स्टेडली चेंजिंग। तो अगर आप कल को अगर कोई चीज समझना चाहते हैं, कल को आपने कहा हमारे स्टेट में, मणिपुर स्टेट में कितने बच्चे माल नरिश्ड हैं, माल नरिशमेंट का लेवल हमारे स्टेट के बच्चों में कितना है और क्यों है, या आपके स्टेट में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितना है और क्यों है, आपके स्टेट में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है और क्यों है। तो अगर इन सब चीजों को समझना हो तो आप इसको पॉपुलेशन वाइज समझेंगे। आप ये देखना चाहेंगे कि सभी मणिपुरी हैं, बट मणिपुरी जो है, मणिपुरी में मणिपुर एज अ स्टेट के अंदर भी अलग अलग टाइप के उसमें ट्राइब्स हैं, कास्ट हैं, रिलीजन के लोग हैं। यस और नो? यस यस। तो इसका मतलब ये है कि सभी के अंदर क्या हेल्थ के पैरामीटर सेम हैं, या कुछ पर्टिकुलर ऐसे सेक्ट्स हैं इस स्टेट के अंदर जिनकी हेल्थ ज्यादा अच्छी है एज कंपेयर टू अदर, या जिनकी हेल्थ वर्स्ट है एज कंपेयर टू अदर। इजंट इट? यस सर। हाँ सर। तो प्रॉब्लम का अगर आपको सोल्यूशन निकालना है तो पहले आपको प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। तो एज अ पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल आपको पब्लिक हेल्थ का जो फील्ड है वो सारे चीजों का, क्योंकि देखिए जब आप हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ मेडिकल नॉलेज होनी चाहिए। मेडिकल नॉलेज या हेल्थ की नॉलेज दिस इज जस्ट अ पार्ट। उसके साथ अगर आपको इकोनॉमिक्स की नॉलेज होगी, जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं बोलूं अच्छा आपको एक नया प्रोग्राम इंप्लीमेंट करना है, आपको मैं 2 करोड़ रुपए देता हूं, तो मैंने आपसे सवाल पूछा एज अ पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल, आप इस 2 करोड़ रुपए का इस्तेमाल नाइट ब्लाइंडनेस को ट्रीट करने में लगाओगे स्टेट के अंदर, या कैटरैक्ट को ट्रीट करने के लिए लगाओगे? सो दिस इज अ डिसीजन, है ना? दिस इज अ डिसीजन। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी प्रायोरिटीज कहाँ होनी चाहिए। तो प्रायोरिटीज को डिसाइड करने के लिए आपके पास में अलग अलग टाइप के मैथमेटिकल मॉडल्स हैं जो आपको समझ में आने चाहिए, ताकि आप एक डिसीजन पे पहुंच सकें कि हमें अपना पैसा इस डिजीज की इरेडिकेशन के ऊपर ज्यादा लगाना चाहिए या इस डिजीज की इरेडिकेशन। तो दैट मीन्स देयर इज अ चॉइस, यू आर कंफ्यूज्ड, so you have a problem of A and you have a problem of B, and you need to decide that whether A is a bigger problem or a B is a bigger problem, and whatever resources that had been allocated to you, by that resource which disease you will be able to manage much better as compared to other, isn't it? Yes sir. हाँ सर। ये भी आपको पब्लिक हेल्थ इस तरीके की। तो पहली चीज हमने ये समझी कि ये डिजीज है कहाँ, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। अब मैंने कहा क्यों, कहाँ, तो यही एपिडेमियोलॉजी है। आपने जो पहला शब्द बोला था कि सर इससे हमको एपिडेमियोलॉजी, तो वो गाना था ना कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, है ना? तो दिस इज बेसिकली व्हाट इज एपिडेमियोलॉजी। डिजीज कहाँ हुआ,
कैसे हुआ, क्यों हुआ, किनको हुआ, कब हुआ, है ना। तो ये जो आंसर्स देता है, अब अगर आप ये सब चीजों के आंसर्स अगर तलाशोगे तो डोंट यू थिंक इट इज समथिंग लाइक रिसर्च? हाँ सर, यस। बिकॉज इट इज समथिंग लाइक इन्वेस्टिगेशन। आप कुछ चीजों को जानने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कि अभी पीछे इंडिया में आपने रिपोर्ट में सुना होगा कि बच्चों को लीची खाने से डेथ हो गई बिहार में, मुजफ्फरनगर बिहार में। यस यस, है ना। तो यस सर। तो सडनली वो हो गया कि भैया एक जगह के एक पर्टिकुलर एरिया में 200 बच्चे 400 बच्चे की डेथ हो गई लीची खाने से, है ना। तो यू हैव टू इन्वेस्टिगेट। तो रिसर्च बेसिकली, तो वो रिसर्च का जो एरिया है वो आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और रिसर्च, पब्लिक हेल्थ में पर्टिकुलर रिसर्च बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए होती है क्योंकि पब्लिक हेल्थ का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। पब्लिक हेल्थ में आपको, अगर आपको लोगों को समझना है तो आपको उसके लिए डेमोग्राफी समझना बहुत जरूरी है कि लोग कौन लोग हैं, उन लोगों का सोशियो कल्चरल मतलब उन लोगों का सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट क्या है, वो लोगों की एवरेज एज कितनी है। अब अगर आप पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन को भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप बच्चों की बात कर रहे हैं, बच्चों में भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप इन्फेंट की बात कर रहे हैं, आप टॉडलर्स की बात कर रहे हैं, आप टीनेजर्स बच्चों की बात कर रहे हैं, आप एडोलेसेंट की बात कर रहे हैं, आप एडल्ट्स की बात कर रहे हैं, आप मिडिल एज लोगों की बात कर रहे हैं, या आप मेल की बात कर रहे हैं, फीमेल की बात कर रहे हैं, चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं। ओके, ठीक है। फिर आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, आप किस एज ग्रुप की बात कर रहे हैं। आप बड़ों की बात कर रहे हैं, बूढ़ों की बात कर रहे हैं, यंग लोगों की बात कर रहे हैं, मेल की बात कर रहे हैं, फीमेल की बात कर रहे हैं। आप फिर उसको और भी डिफाइन कर सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ आप जब हेल्थ फैसिलिटीज की बात करते हैं कि सभी को कम्युनिटी वाइज, रिलीजन वाइज, कास्ट वाइज सभी को क्या प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज मिलती है कि नहीं मिलती, या किसी एक पर्टिकुलर ट्राइब में इस तरीके की प्रॉब्लम ज्यादा नजर आती है एज कंपेयर टू द अदर। तो आपका उसके बाद में जब आप, तो दिस इज वन एस्पेक्ट व्हेन यू ट्राई टू डिफाइन एनी डिजीज, है ना, वो भी पब्लिक हेल्थ का दायरा है। जैसे कोविड, ज्यादा लोगों को, अब लोगों ने बोला यार कोविड उन लोगों को ज्यादा इफेक्ट करेगा जिनको ऑलरेडी डायबिटीज, हाइपरटेंशन है। तो हमने कहा अगर किसी डायबिटिक या हाइपरटेंसिव आदमी को अगर वैक्सीन लग जाए तब भी क्या कोविड इक्वली इफेक्ट करेगा? तो लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, तब इसकी सिवियरिटी कम हो जाएगी, है ना। सो दैट मीन्स research will try to give you the answers that you are trying to seek. And why you are trying to seek the answers? Because there is a problem, because you want to find out the solution, because the problem has some impact. That impact, अगर मान लीजिए आपके घर के सामने से नाली जा रही है और नाली का अगर आपका घर के सामने से नाली जा रही है और उस नाली का जो पाइप है वो फट गया और उसमें से सीवर का पानी निकल रहा है, तो आप क्या उसी हालात में क्या रहने की कोशिश करोगे जिसमें बदबू आ रही है, या उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करोगे? तो रेक्टिफाई करूंगा, रेक्टिफाई करेंगे ना। हाँ। तो दैट मीन्स कोई भी चीज या कोई भी प्रॉब्लम जब उसका इम्पैक्ट सोशल लेवल पे होना शुरू हो जाता है, उसका इम्पैक्ट इकोनॉमिक लेवल पे होना शुरू हो जाता है, उसका इम्पैक्ट आपके पॉपुलेशन लेवल पे होना शुरू हो जाता है, तो उसको आप हमेशा मैनेज करने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए पब्लिक हेल्थ का दायरा इतना बड़ा है कि इसमें आपको मेडिकल साइंस की नॉलेज चाहिए, इसको आपको हेल्थ साइंसेस की नॉलेज चाहिए, इसमें आपको डेमोग्राफिक्स की नॉलेज चाहिए, इसमें आपको एंथ्रोपोलॉजी की नॉलेज चाहिए, इसमें आपको स्टैट्स की नॉलेज चाहिए, रिसर्च मेथोडोलॉजी की नॉलेज चाहिए, इकोनॉमिक्स की नॉलेज चाहिए, मैनेजमेंट की नॉलेज चाहिए, है ना, ताकि आप उसके सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट को समझ सकें और उसके हिसाब से आप ऐसे सॉल्यूशंस बनाएं ताकि जब बीमार हो आदमी तब तो उसको प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी मिले ही मिले, और जब वो स्वस्थ हो तो वो ज्यादा दिनों तक भी स्वस्थ रह सके। सो इट डज नॉट ओनली जस्ट इंक्लूड when the person are going to be affected because of some disease, but even in that state when they can maintain the longevity and good health for a longer period of time. इसीलिए जैसे कहा कि वैक्सीनेशन, अब एक वैक्सीनेशन लगाना ज्यादा अच्छा काम है लॉन्ग टर्म में किसी की हेल्थ को सुरक्षित रखने के लिए, या उसको बीमारी के बाद उसको ट्रीटमेंट देना ज्यादा अच्छा काम है? क्या लगता है आपको?
सरकार के लिए ज्यादा अच्छा। सर फिर बोलिए। एक पॉपुलेशन में डिजीज हो रही है लोगों को, और आपने अपने अस्पताल खड़े कर दिए, उनका ट्रीटमेंट भी हो रहा है, और आपको लगा कि मतलब उनको अगर वैक्सीन लगा दो या उनको पहले से ही अगर डिजीज की रोकथाम कर जाए, तो ज्यादा अच्छा इकोनॉमिकल मॉडल कौन सा है? बीमार होने के बाद में इलाज कराना या पहले से ही वैक्सीन लगाना? पहले से ही वैक्सीन लगाना। पहले से ही वैक्सीन लगाना। क्यों बोला आपने ये पहले से ही वैक्सीन लगाना? बिकॉज आप ये समझ रहे हैं कि भाई अगर आदमी बीमार हो जाएगा तो उसका एक कॉस्ट है, उसकी हेल्थ खराब होएगी, हो सकता है उसकी डेथ हो जाए, जिसको आप मोर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी बोलते हैं। ये भी हो सकता है कि उसको छुट्टी लेना पड़े, जब छुट्टी लेगा तो वो काम पे नहीं जाएगा, जब वो काम पे नहीं जाएगा तो उसका एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, उसका एक लॉस है ना। जैसे मान लो कि आज आपको सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक अगर आप ऑफिस जाते तो आप कुछ काम करते, आपकी कुछ प्रोडक्टिविटी होती, अब आप छुट्टी लेके घर पे बैठे हुए हैं, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन, तो उसकी कहीं ना कहीं तो कोई कॉस्ट है ना, वो कॉस्ट कोई ना कोई तो बियर कर रहा है ना, है ना। तो जो काम आज होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ, जब वो काम नहीं हुआ तो वो डिले हो गया, जब वो डिले हो गया तो उसकी एक इकोनॉमिक कॉस्ट आ गई, isn't it? तो आप देखिए जब मैं उसको डिटेलिंग में जाऊंगा तो मुझे ये समझ आएगा कि पब्लिक हेल्थ का इम्पैक्ट सिर्फ सोशल नहीं है, उसका एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है, उसका एक हेल्थ का इम्पैक्ट भी है, उसका एक मॉरल इम्पैक्ट भी है, उसका एक इमोशनल इम्पैक्ट भी है उस पॉपुलेशन पे, राइट? यस सर। है ना। तो रिसर्च क्या होता है? तो जब आप कोई भी चीज को रिसर्च करना चाहते हैं तो वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होगा, क्योंकि वो वेगली नहीं हो सकता, इट हैज टू बी वेल थॉट ऑफ, है ना। तो उसको आपको पहले से सोचना पड़ेगा, उसको साइंटिफिकली उसको आपको देखना पड़ेगा, उसको आपको केयरफुली इंक्वायर करना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा। किस लिए आप ये सब करना चाहते हैं? व्हाई? बिकॉज यू वांट टू डिस्कवर सम न्यू इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग और टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप। या तो आप कोई नई चीज जानना चाहते हैं, या आप देखना चाहते हैं दो चीजों के बीच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं, जैसे ए और बी। जैसे आपने कहा कि जिन लोगों को डायबिटीज या हाइपरटेंशन हो जाता है, क्या वो ज्यादा रिस्क पे हैं टू गेट सफर फ्रॉम कोविड-19 और ओमिक्रॉन? तो अगर मान लीजिए कि आज अगर गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई सबको हमने 150 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी, तो आपका सवाल ये होना चाहिए कि भैया तो गवर्नमेंट कह रही है आपने 150 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी, बट लोगों को, और WHO बोलता है कम से कम भी 2 वैक्सीनेशन जरूरी हैं लोगों को सेफ रखने के लिए। तो गवर्नमेंट अगर अपनी पीठ थपथपा रही है और ये कह रही है कि हमने 150 करोड़ों को वैक्सीन लगा दी, तो आप ये पूछेंगे काउंटर में कि भाई साहब 135 करोड़ इंडिया की जनसंख्या है, तो 2 वैक्सीनेशन तो सिर्फ 15% लोगों को ही लगा है, बाकी के 85% तो अभी भी प्रोन है। यस सर, एग्जैक्टली, यस यस। तो अगर ये जो 85% जिनको सेकंड वैक्सीनेशन नहीं लगा है, अगर इनको कल को ओमिक्रॉन हो गया फिर क्या होगा? एग्जैक्टली, Isn't it? तो तब भी क्या आप सेकेंड वेव की तरह आप सबको बोलोगे कि थाली बजाओ और ये करो और वो करो, और आपका अनसाइंटिफिक टेम्परमेंट करके आप क्या मैनेज करोगे कोरोना को? Isn't it? तो पब्लिक हेल्थ आपको क्वेश्चन करने पे मजबूर करता है कि आपका साइंटिफिक आपका माइंडसेट क्या है। आपको वो चीज बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से बताएगा कि उसको आप कैसे सेग्रीगेट कीजिए, कैसे दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कीजिए, वो 2 या 2 से ज्यादा। जैसे एज ऑफ द मदर एंड वेट ऑफ द चाइल्ड। तो किसी ने बोला कि भाई अगर औरत की एज कम होएगी और कम एज में अगर औरत मां बन जाती है तो उससे उसको और उसके बच्चे दोनों की जान को खतरा है। तो दैट मीन्स you are trying to establish a relationship between 2 variables, that is the age of the mother and the weight of the child. All of you agree? Yes sir. Yes okay sir. So गवर्नमेंट ने बोला हाँ यार ये बात तो ठीक है, हम तो देख रहे हैं इसका तो एक एसोसिएटिव रिलेशनशिप है, और ये जो रिलेशनशिप ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, जिसमें जो कोरिलेशन की आर वैल्यू आई है वो 0.84 आया है, जिसका मतलब है इट इज हाईली सिग्निफिकेंट and both the variables are well interrelated with each other because तो इसका एक इनवर्स रिलेशनशिप आया। दैट मींस अगर औरत की एज बढ़ेगी
तो वेट भी बच्चे का अच्छा होगा, है ना, सॉरी डायरेक्ट रिलेशनशिप। और अगर औरत की एज कम होगी तो बच्चे का वेट भी कम होगा। तो आपने इस तरीके का रिलेशनशिप देखा, एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज इट्स इम्प्लीकेशंस फ्रॉम अ सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू, इजंट इट? तो ये आपको रिसर्च मदद करता है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू दिस, देखिए यहाँ पे जो बातें लिखी हैं वो जनरल रिसर्च के बारे में लिखी है। मैं आपको जो एग्जांपल्स दे रहा हूँ वो पब्लिक हेल्थ के एरिया से दे रहा हूँ, है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि रिसर्च की बहुत आवश्यकता है पब्लिक हेल्थ के एरिया में। रिसर्च एक सिस्टमैटिक कंट्रोल्ड, क्योंकि रिसर्च करने के लिए आपको एक एरिया चाहिए जहां पे आप अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से आप उन चीजों को का अध्ययन कर सके, आप उन चीजों को समझ सकें, ताकि आप फिर सोच सकें कि अगर एक छोटी सी जगह पे इस चीज का ऐसा इंपैक्ट हो रहा है, अगर मैं इसको लार्ज स्केल में दे दूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने आंकड़े जारी किए और उन्होंने कहा कि इंडिया में जो टोटल डेथ हुई थी कोरोना से वो करीब 1.5 या 2 या 3 लाख समथिंग हुई थी। तो WHO ने कहा भाई हम आपके आंकड़ों को नहीं मानते हैं, वी डोंट बिलीव इन योर फिगर्स। और इसलिए WHO ने अपने जो अभी रिसर्च पेपर पब्लिश हुए थे जहां पे स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग से कैलकुलेट किया गया कि इंडिया में कम लगभग दोनों वेव्स के अंदर 32 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। दैट मीन्स 3.2 million people lost their lives in India due to COVID. And these are very conservative figures, है ना। अब सवाल ये आता है, गवर्नमेंट कह रही है 3 लाख, WHO या दूसरी एजेंसी जो है वो कह रही है 32 लाख। अब कोई तो सच बोल रहा है, कोई तो झूठ बोल रहा है। Do you agree or you disagree? Agree sir, agree sir. तो जो इंडिपेंडेंट अच्छे रिसर्चर्स हैं उन्होंने कहा कि हमने अगर नॉर्मल टाइम में अगर इतने लोगों की डेथ होती है ड्यू टू हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, तो जिस टाइम कोरोना हुआ तो उस टाइम पे वो लोग कहाँ चले गए भाई? ये तो जो डेथ्स हैं वो तो हम सिर्फ इस कोविड की वजह से बता रहे हैं, क्योंकि हमने सबको फोन किया। अभी एक सर्वे हुआ था सी वोटर, तो उन्होंने सबको फोन किया। उसमें सी वोटर के अंदर यशवंत देशमुख का भी एक रिसर्च स्टडी आई है, और कनाडा के एक इंडियन प्रोफेसर है, पब्लिक हेल्थ प्रोफेसर, उन्होंने ये रिसर्च स्टडी पब्लिश की है। और ये बहुत ही क्लासिकल उन्होंने बताया है कि भाई हमारे एस्टिमेट के हिसाब से 32 लाख लोगों की डेथ हुई है। सर, और उन्होंने डेटा इज टोटली फेक। which data is fake? सर एक्चुअली कोविड रिलेटेड जो डेथ हुआ एक्चुअली वो ओरिजिनल डेटा नहीं है। तो हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं वो लोग कि भाई yes, जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है वो सब फेक डेटा है। जो इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स बाहर बैठे हैं उन्होंने कहा भाई इतने डेथ नहीं पॉसिबल है, इससे ज्यादा डेथ हुई है। और उन्होंने उसको सेकेंडरी डेटा से मैच करा के इन्होंने पब्लिश दिस रिसर्च, एंड WHO ने उस रिपोर्ट को माना है जो इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ने निकाली। ओके, सो आई विल शेयर दैट स्टडी विद यू, so you can read it, you can understand it, है ना। So you may agree with it, you may not agree with it, so it is a choice, but public health professionals need to understand what is research, how it is being done, why it is being done, what are the main objectives of doing the research, आप कर क्यों रहे हैं, आप जानना क्या चाह रहे हैं। अब जैसे इस स्टडी में वो ये जानना चाहते थे कि एक्चुअल कोविड के दौरान इंडिया में कितनी मौतें हुई। तो एक टाइम जब कोई भी मीडिया प्रॉपरली रिपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई आपका रिपोर्ट बाहर नहीं आ रही है, इन्वेस्टिगेशन आप नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई ना कोई तो होना चाहिए ना ऐसा जो आपको सही आंकड़े बताएगा, ठीक है ना। ताकि सर ये एक क्वेश्चन है सर, आप जैसे बोल रहे हैं तो इसी के लिए तो ये एक्चुअली जो MPH का जो स्टाफ होता है ना सर, वो खुल के काम नहीं कर पाएंगे। वो एक पॉलिटिकल मैटर बेटा अलग है, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पे ना सर, एक्चुअली मैंने सर त्रिपुरा में ही देखा, एक्चुअली त्रिपुरा में
जो एक्चुअली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो कोविड ने इन्फ्लुएंस किया, तो हम लोग कोविड हॉस्पिटल में ड्यूटी किया, तो तब वो लोग सेकेंडरी एक्चुअली कोविड को नहीं दिया, कोविड हुआ क्या मरा, बट फर्स्ट प्रायोरिटी दिया वो कैंसर पे मर गया, डायबिटीज से मर गया, रेनल डिजीज से मर गया। तो मेरा क्वेश्चन है सर, एक्चुअली जो एमपीएच का जो काम है वो तो ठीक से नहीं कर पाएंगे ना? नहीं, वो देखो, अब वो डिपेंड करता है कि अगर गवर्नमेंट मशीनरी ऐसी है जो आप वो ऑनेस्ट है अपनी चीजों के बारे में, तो आप तो काम ठीक से कर पाएंगे। अगर वो ऑनेस्ट नहीं है तो काम भैया वो फिर खाना पूर्ति का काम होगा, उससे पेपर भरना है और यही चीज। बट अगर आपको नॉलेज प्रॉपर होगी तो ये तो ठीक है, चलो यहाँ की कंडीशन है, बट हर जगह पूरी दुनिया में भी तो ऐसी कंडीशन नहीं है ना हर एक जगह। यस 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 ठीक है ना। अब एक अच्छा रिसर्चर या अच्छा एकेडमिशियन वो होता है जिसको सही और गलत दोनों पता है। अब वो कौन से सिस्टम को अपना के काम करता है वो इसका अपना एटीट्यूड है ना। ठीक है ना। इंडिया में क्या होता है कि हम लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, बहुत ईमानदारी की बातें करते हैं, बट रियल प्रैक्टिस में तो वो कोई भी चीज फॉलो नहीं करते ना। नहीं सब खाता कलम मैंने वर्किंग एविडेंस है जो खाते में है और प्रैक्टिकल में कुछ अलग है। बिल्कुल। तो आपको मैं दोनों तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये चीज ऐसी है, एग्जाम में लिखना है तो भाई ऐसा लिखना है, बट रियल जिंदगी में रियल जिंदगी एग्जाम नहीं होता ना भैया। रियल एग्जाम वहां पे क्या आपकी नॉलेज बहुत, आपकी वास्ट नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो रिसर्च इज, तो इसलिए लिखा हुआ है रिसर्च इज समथिंग सिस्टमैटिक, इट इज कंट्रोल्ड, इट इज एम्पेरिकल। आपके पास में उसका एविडेंस है। वो क्रिटिकल आपकी इन्वेस्टिगेशन मांगती है, जहां पे आपके पास में कुछ हाइपोथेसिस होगा। हाइपोथेसिस मींस आप कुछ तथ्य लिखोगे। देयर इज सम whether this thing has affected the problem or this thing has not affected the problem। ठीक है ना। जैसे सवाल उठा, चाइना ने लोगों ने कहा भैया कोरोना कहां से आया, वुहान से आया। अब लोगों ने अभी तक ये सवाल बना हुआ है, कोरोना जो आया दुनिया में वो मैन मेड था या नेचुरल था। तो इट इज स्टिल अ क्वेश्चन। कुछ थ्योरीज बता रही है ऐसा हुआ, कुछ थ्योरीज बता रही है वैसा हुआ, है ना। सो it is a investigation of the hypothetical proposition about the presumed relationship among the natural phenomena। तो ये एक बेसिकली उसका मीनिंग है। is it clear to everyone? सबको समझ आ गया ये बात? यस। ओके। तो जब आप कोई भी रिसर्च करते हैं तो आपका पर्पस क्या है? अभी जो मैंने इतने सारे एग्जाम्पल दिए, तो इनका पर्पस क्या था? पर्पस ये है, आप अपनी नॉलेज को और विस्तृत करना चाहते हैं, है ना। अगर आपको ज्यादा नॉलेज होगा तो आपका डिसीजन मेकिंग ज्यादा सटीक होगा, आपका ज्ञान ज्यादा व्यापक होगा, आप ज्यादा एरियाज को टच कर पाएंगे, आप जो सॉल्यूशंस बनाएंगे वो ज्यादा अच्छे काम करेंगे। Isn't it? Because knowledge is power, है ना। Then second, to put light on the hidden facts or mysteries। अब वही है, अब गवर्नमेंट कह रही है जी सब कुछ बड़ा रोजी है, शाइनिंग इंडिया और सब कुछ बहुत अच्छा है, ठीक है। आप बोल रहे हैं अरे भैया कहाँ से अच्छा है, नौकरियां मिल नहीं पा रही हैं। अब एग्जाम्पल लेके चलो, किसी ने बोला कि भाई सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, नौकरियां बहुत मिल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एजुकेशन का लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आजकल एक इंडिया में एक डाइकोटमी हो गया है कि चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं या वाकई में चीजें बिल्कुल पटरी से उतर गई हैं। जैसे इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है या इकोनॉमी खराब चल रही है ना। तो हर एक चीज का इम्पैक्ट होता है। तो डू यू थिंक कि इन क्वेश्चंस का इम्पैक्ट हेल्थ के ऊपर है? जैसे आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, आपको क्या टाइम पे सैलरीज मिल जाती हैं सबको? आप सबको क्या टाइम प्रॉब्लम होता है, समटाइम मिलता है, समटाइम्स प्रॉब्लम होता है, समटाइम मिलता है। अच्छा, हेल्थ का सिचुएशन अगर, तो हेल्थ कौन कौन सी चीजों से इम्पैक्ट करता है? तो कहने का ये मतलब है कि हेल्थ अगर हम बोले तो हम बोलेंगे कि भाई हेल्थ लोगों की अपनी नॉलेज से इम्पैक्ट होता है, हेल्थ गवर्नमेंट के सिस्टम और स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है उससे इम्पैक्ट होता है, ठीक है ना। तो जैसे इसको हेल्थ सिस्टम्स का पार्ट है, हेल्थ सिस्टम्स के पार्ट में हम बोलते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, अफोर्डेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर। हेल्थ केयर अवेलेबल है या नहीं है,
हेल्थ केयर अगर अवेलेबल है तो एक्सेसिबल है या नहीं है, और अगर अवेलेबल भी है, एक्सेसिबल भी है, तो अफोर्डेबल है या नहीं है। तो जब आप अफोर्डेबिलिटी की बात करेंगे तो वहां पे फाइनेंस का सवाल आ जाए, वहां पे बजट का सवाल आ जाए, वहां पे मनी का सवाल आ जाए। अब अगर इंडिया की जीडीपी, व्हाट इज द जीडीपी ऑफ इंडिया? जीडीपी समझना क्यों जरूरी है हेल्थ के पर्सपेक्टिव से? व्हाट इज द जीडीपी ऑफ इंडिया, कौन बताएगा? तो ये अब आप बोलेंगे सर जीडीपी हमको क्यों जानना, ये तो इकोनॉमिक्स का सवाल है। भैया जीडीपी, क्योंकि अगर पैसे ही नहीं होंगे तो खर्चा कहां से करोगे भाई? अब कल आप बोल रहे हो कि सर मेरे को तो पब्लिक हेल्थ में जॉब मिल जाए जहां पे मुझे 60,000 रुपीज पर मंथ चाहिए। गवर्नमेंट ने भी बोल दिया भैया 60, गवर्नमेंट ने भाई भैया प्रोग्राम तो हमें खोलना था, हमें चाहिए भी, बट हमारे पास बजट नहीं है कि नहीं बात? तो Yes, sir. you have Yes, to sir. understand the things in totality, कि उसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन क्या है, उसका सोशल इम्प्लीकेशन क्या है, उसका 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 इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या है, सोसाइटी के ऊपर उसका इम्प्लीकेशन क्या है। तो इट विल हेल्प यू टू पुट द लाइट ऑन द हिडन फैक्ट्स, ऐसी चीजें जो छुपी हुई हैं, जो किसी की नजरों में नहीं आई हैं, बट उसका बहुत सिवियर इम्पैक्ट है उस चीज के ऊपर, वो आपको निकालने में मदद करेगा। देन जो चीज आपने रिसर्च से निकाली है, जब आप उसको मास लेवल पे किसी पॉपुलेशन के ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे, तो क्या वो आपको सही रिजल्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहा, ये भी आपको आंसर करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसा आपको बताया कि आपके यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, अब आपका फोकस कौन सी डिजीज को इरेडिकेट करने में पहले लगना चाहिए। अब जैसे पहले आपने अगर पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स में आप देखेंगे कि पहले किसी टाइम पे 2000 ऑनवर्ड्स एड्स के ऊपर बहुत मतलब प्रचार था, क्योंकि फॉरेन फंडिंग एड्स के लिए बहुत अवेलेबल थी। अब ये सवाल है कि इंडिया में एड्स की प्रॉब्लम ज्यादा प्रोमिनेंट थी या देयर आर अदर प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जांपल लाइक ट्यूबरक्लोसिस? Tuberculosis. ट्यूबरक्लोसिस बहुत भयानक बीमारी है, इंडिया में Yes, sir. ट्यूबरक्लोसिस बहुत रैम्पेंट है ना, और Yes, sir. ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस बहुत ज्यादा रैम्पेंट है। Yes, sir. अब उसको इरेडिकेट करने के लिए हमने भैया डॉट्स प्रोजेक्ट बनाया, और ये इतने टाइप के पर वो कितने सक्सेसफुल हैं, नहीं सक्सेसफुल है, अगर सक्सेसफुल हैं तो क्यों सक्सेसफुल है, अगर सक्सेसफुल नहीं हुए तो क्यों नहीं सक्सेसफुल हुए। लोगों में अवेयरनेस की कमी है, लोगों को नहीं समझ आता है, लोगों की पुअर कंडीशंस हैं, लोग ऐसे माहौल में रहते हैं जहां पे उनको टीबी आराम से लग जाती है, या टीबी लगने के बाद उनको दवाई नहीं मिल पाती है, उनको न्यूट्रिशन नहीं है। तो ये बड़ी 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 सारे एस्पेक्ट्स हैं या नहीं है पब्लिक हेल्थ के? Yes, sir. बड़ी सारे है ना। और हर एक स्टेट में, अब इंडिया में आज की डेट में 33 स्टेट्स हो गए हैं, ठीक है, तो अब वो यूनियन टेरिटरीज अलग हो गए, तो ये हर एक स्टेट में की प्रॉब्लम क्या सेम है? अब कल को कोई बोले भाई साउथ के स्टेट्स अर्न मोर मनी देन द नॉर्थ के स्टेट्स, तो साउथ के स्टेट्स बोलेंगे यार हमारी पॉपुलेशन ज्यादा एजुकेटेड है, हम ज्यादा जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं, और जब पैसा मिलने की बात होती है सेंटर से तो हमको कम पैसा मिलता है, हम कमा ज्यादा। अब मान लीजिए कि आपके परिवार में 5 फैमिली मेंबर्स हैं, आप 3 भाई हैं, आप सबसे ज्यादा घर में हर महीने आप 50,000 रुपीज आपकी सैलरी है, 1 लाख रुपीज, आप उसमें से 1 लाख रुपीज कमाने के बाद में आप 50,000 अपने घर में दे देते हैं, 50,000 में आप अपना गुजारा करते हैं। जब कॉमन खर्चे चलाने की बात होती है तो आपको अपना शेयरिंग में मिलेगा 10,000 रुपीज, आपका ब्रदर जो कम कमा रहा है उसको मिलेगा 20,000 रुपीज, और वो घर में दे रहा है 5,000 और आप दे रहे हैं 50,000। तो आपके मन में खटास आएगी कि नहीं आएगी? जी, व्हाट डू यू थिंक? यस उज्जवल। हाँ सर। सर ऑब्वियसली क्वेश्चन तो आएगी ना। क्यों आएगी? तुम्हारे को तो ये लगना चाहिए यार मेरा भाई तो है, तो क्या हुआ, अगर मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ता तो मैं करूंगा सैक्रिफाइस, मैं हर महीने दूंगा 50,000 रुपए, बेशक मेरे को 10,000 रुपए मिले,
ठीक है, वो ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो 5,000 रुपए ही दे रहा है, बट 5,000 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, ले 20,000 रुपए रहा है हर महीने। क्या नॉर्मल मतलब नेचुरल सिचुएशन में क्या होता है ऐसी चीजों में? यस बेबीचा, आर यू अंडरस्टैंडिंग माय क्वेश्चन? Pardon, sir. Yes, Bebicha, have you understood my question? तुमने सुना मैंने क्या बोला? तुमने सुना मैंने क्या बोला? Yeah, but please repeat it once. I asked you, you are earning 1 lakh rupees at your home. You are 3 sisters and you are paying every month 50,000 rupees in your home. Okay. So the money is collected. So total suppose money is collected. And you, since your sister is contributing just 5,000 rupees. At the end of the day, in order to manage the livelihood of each and every family member, you are getting 10,000. You pay 50,000, you get 10,000. Your sister pays 5,000 and she gets 20,000 because she has got more family members. So whether you will like it or you will not like it. No, sir. You will not like it? Yeah. Why? Because most of the family materials and everything, whatever uses in our daily livelihood is from my income only, I think. So you are saying that I am working the hardest and I am getting the lowest share. Okay. Yeah. Okay. So this is what happened. Like India is a tale of 33 states are very different. The states in India, the North Indian states, say UP, Bihar, Madhya Pradesh, they are the most poorest performance under Human Development Index. You can check on the record. The South Indian states are much better. So they are earning the maximum, but they are getting the lowest. Those states who are performing the poorest, they are getting the maximum. So what it will give rise to? It will give rise to a clash over a period of time, because there is unequal distribution of resources. Okay. So now suppose if you want to, if your state, if suppose Manipur, you want more, you said, see, we are contributing maximum, our state is contributing maximum because of tourism, because of X, Y, Z, and for health, in order to improve the health of the people, you are getting suppose 50,000 crores, and you have calculated for a good health you require at least 2 lakh crores. So will you be happy just by taking 50,000 crores, even if you are contributing almost 1 lakh crore every year? Yes, Rajiv. Yes, Rajiv, Chanu. Sir. Will you be happy to take, your requirement is 2 lakh crores. Okay. You are getting just 50,000 crores. Even though you are contributing, suppose say 5 lakh crores in the Indian economy. So will you be happy to take just 50,000 crores when you have demanded 2 lakh crores? No, I will not be happy. You'll not be happy because it will give rise to, so in real life this situation becomes very, because when at a government level, when you have to manage so many states, everything has, so it has got a political impact, it has got a social impact, it has got a cultural impact, you understand? So Yes. so public health becomes a much complex issue rather than just talking about just
a biological aspect. It is much more than a biological aspect. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So there is a generalization of laws, and to verify and test the existing facts and the theories, and we do research in order to find solutions to the problem. Okay. So this is why we do research in public health. So based on this, there are two types of research. One is a descriptive research, other is an analytical research. This is one of the. So descriptive research, when you describe something, for example, corona. Now people describe what will be the corona disease like. Like now people are describing how Omicron is different from a coronavirus. Okay. Now descriptive research is a fact-finding investigation which is aimed at describing the characteristics of an individual, of a situation, of a group, describing the state of affairs as it exists at present. Okay. So here basically the researcher has got no control over the variables. He has to report, or he or she has to report that whatever has happened or is happening. Okay. So this is basically the type of a descriptive research. Is it clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So this is a descriptive research. So for example, you are saying like how the health of the people have impacted, how the health of the poor people has impacted after corona. What has happened to the education level? People said, the corona has got so much good impact because there so many students now can get an online education, everything. It is so good. But then the question comes, okay, for you online education is available because you have got a smartphone, you have got a laptop, you have got a good connection, and I am sitting here in Riyadh and I'm taking a class for you sitting in Manipur or in some part of the world. Okay. Because you have got access to it. What about those children who cannot, for whom the technology is not accessible? What will happen to them? ना उनके पास स्कूल है, ना स्मार्टफोन है, ना उनके पास में बिजली है, ना उनके पास में इंटरनेट है. Then how they are going to study? Yes, obviously affected hoga study. So this is what has happened. So this is only one part of the picture. It looks very rosy. So those people who can afford it, for them it is a very good thing. Technology is a very good thing. But those people who cannot afford, for them it is just a waste of last 2 years. उनकी जिंदगी बहुत waste हुई. They have not learned anything, isn't it? Yes, yes. तो हर चीज का एक इम्पैक्ट है. उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है. तो आपको हिसाब से देखना होता है. सो एनालिटिकल रिसर्च इज प्राइमरीली, वन इज अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जब आप उसको डिस्क्राइब करते हैं. द सेकंड वन टाइप इज एन एनालिटिकल रिसर्च. Analytical research is that type of a research which is primarily concerned with the testing of a hypothesis. That means आपने एक assumption बनाया है. आपने कहा कि भाई टेक्नोलॉजी अगर आएगी तो लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचेगा. जैसे हमने सोचा कि हमने बहुत पहले से ये कर दिया था, क्योंकि हमें लगा कि हम जिस ऑडियंस को केटर करते हैं उसके लिए हमारे लिए बहुत इजी होगा उसको काम सिखाना, पढ़ाई कराना और उसको अल्टीमेटली उसकी नौकरी लगाना, है ना. सो दिस इज बिकॉज हमारा ऑडियंस ऐसा था कि वो कम से कम पढ़ाई लिखाई कर सकता है. हमारा ऑडियंस ऐसा था जो एक मिडिल क्लास के उस स्टेटस से आता है जिसके पास में एटलीस्ट कुछ चीजें हैं अवेलेबल, है ना. सो basically analytical research is primarily concerned with the testing of the hypothesis and specifying and interpreting the relationships. For example, अगर कोई आदमी सिगरेट पीता है तो आपने एस्टैब्लिश करना है कौन से टाइप का सिगरेट में, सिंपल सिगरेट, बीड़ी या सिगार, which causes more cancer as compared to the other. So this could be a type of a research. जब आप देखने की कोशिश कर रहे हैं कि बीड़ी ज्यादा खतरनाक है, तीनों में टोबैको है, बट आप ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि बीड़ी ज्यादा खतरनाक है या सिगार ज्यादा खतरनाक है या सिगरेट ज्यादा खतरनाक. तो किसी ने बोला भाई एक सिगरेट जो है ना वो 10 बीड़ी के बराबर है, या एक बीड़ी जो है 10 सिगरेट के बराबर है, या एक सिगार जो है
वो 10 सिगरेट के बराबर है। तो आपने कहा ज्यादा खतरनाक कौन सा है, तो आपने कहा भाई मेरे हिसाब से तो सिगार है। बट आपने जब रिसर्च की तो आपको लगा नहीं यार सिगरेट ज्यादा खतरनाक है सिगार से। फिर आपने सोचा यार ऐसा कैसे हो सकता है, तो यू ट्राई टू इन्वेस्टिगेट सच अ थिंग। सो दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज नोन एज एनालिटिकल रिसर्च। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. So we are concerned with testing a hypothesis and specifying and interpreting the relationships by analyzing the facts and the information already available. For example, जब आप किसी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या हेल्थ परफॉर्मेंस लॉन्ग टाइम तक देख रहे हैं, उससे आप ये आप बता सकते हैं कि सामने वाले की हेल्थ डिटेरिएट कर रही है, अच्छी है या मेंटेन्ड है। ओके, सो दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज नोन एज एनालिटिकल रिसर्च. Then there are other type of research like fundamental research and applied research. So applied research or the action research is carried out. हम ये किस लिए करते हैं? To find out a solution for a problem. Okay? जैसे कि आपने कहा कि भाई कोविड के टाइम पे आप किस तरीके से अपने किसी ने कहा कि अगर कोविड के टाइम पे आप किस तरीके से अपनी नौकरियों को मेंटेन रखेंगे, तो गवर्नमेंट ने कहा यार हम सबको कुछ अलाउंस दे देते हैं ताकि अगर उनका कट ऑफ भी हो रहा है ताकि लोग अपनी जिंदगी को जी सके। सो इट्स लाइक अ अप्लाइड रिसर्च। जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपको नौकरी नहीं है तो हम आपको कुछ खाने के लिए दे देते हैं, ठीक है, तो अगर खाना मिलेगा तो एटलीस्ट लोगों के घर में एटलीस्ट नौकरी नहीं भी है तब बट एटलीस्ट सब लोगों के पास पेट भरने के लिए कुछ हो, ठीक है ना। तो इस तरीके तो अप्लाइड और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स इम्पैक्ट डायरेक्टली ऑन हेल्थ, वेल्थ, कल्चर और द डेवलपमेंट ऑफ अ मेथड। तो अप्लाइड रिसर्चर्स हमेशा उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करता है, और जो फंडामेंटल रिसर्च होता है वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जैसे किसी ने मतलब पॉवर्टी का मॉडल बना दिया, किसी ने हेल्थ, आपको हेल्थ मिलता कैसे है, हाउ डू यू सीक हेल्थ, तो उसका कुछ मॉडल बना दिया। तो दैट टाइप ऑफ रिसर्च इज नोन एज अ fundamental research. Is also known as the pure or the basic research which is undertaken for the sake of knowledge without any intention to apply it or practice. आप natural phenomena या natural चीजों के हिसाब से उसको देख के चलते हैं। Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो आज के लिए इतना या अभी आगे और पढ़ना है? Yes. Oh, no, sir. It's okay for today. Okay for today? हाँ. Okay. So next class में हम quantitative and qualitative research से शुरू करेंगे। Okay? Okay, sir. Okay. Sir. Yes. Sir, actually, research part is most important part of MPH. सर क्योंकि ये रिसर्च करने के लिए सब कुछ लगेगी, तो जैसे वो 101, 2, 3। बेटा रिसर्च करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आप जो प्रोजेक्ट करेंगे ना अपना, उसमें आप इसको प्रैक्टिकली सीखेंगे। इसलिए आई एम ट्राइंग टू गिव यू डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स, क्योंकि ये आपका थ्योरी बेस्ड एग्जाम होगा, है ना, रिसर्च का, रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप बायोस्टैटिस्टिक्स ना समझे साथ में। तो मैं इसको पूरी तरह आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और फिर आप उसको जैसे आप काम कर रहे हैं, माई गोल इज टू आपको इस तरीके से मैं थोड़ा सा गाइड करूं ताकि आपको ये स्टडी कर पाए। बेशक वो इस साल आपका प्रोजेक्ट का पार्ट हो नहीं हो, बट आप कम से कम उससे कुछ पब्लिकेशन निकाल सके। अगर आप कल को कुछ पब्लिश कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, लोगों ने उसके बारे में पढ़ा और लोगों ने उस चीज को अप्रिशिएट किया या उस पर कुछ मतलब टिप्पणी की और आपको सीखा आपने प्रैक्टिकली। ओके सर। ओके, इवन दो ये आपकी पढ़ाई का उतना पार्ट नहीं होगा वो, बट आपको ये जिंदगी में आगे जाने के लिए या कल को अब्रॉड मूव करने के लिए या हायर स्टडीज करने के लिए बहुत काम आएगा अगर आप कल को पीएचडी करना चाहते हैं। हाँ सर। सर आप बिजी नहीं है तो? बिजी एग्जॉस्टेड है कुछ? नहीं बताओ बेटा। सर एक्चुअली आप थोड़ा बताएंगे अच्छे होगा। एक्चुअली एमपीएच में क्या क्या ऑप्शन है कुछ सर? एमपीएच में बेटा बहुत बड़ा एरिया है। अब एमपीएच आप
इन्फेक्शियस डिजीजेस को लेके आप वर्कआउट कर सकते हैं, आप हेल्थ सिस्टम्स के ऊपर स्टडी कर सकते हैं, आप कल को मैटरनल एंड चाइल्ड मतलब स्पेशल ग्रुप्स के ऊपर काम कर सकते हैं, जैसे चिल्ड्रन हो गया, फीमेल्स हो गई, है ना। एक यूट्यूब में मेरा वीडियो आप देखना कि व्हाट अ प्रोफेशनल व्हाट इज पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स कैन डू, ठीक है ना। तो उस पे आप व्हाट पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स what type of a skill set public health professionals require, तो आप YouTube में जाके डॉक्टर मोहम्मद मिराज टाइप करके आप देखना, उसमें मैंने पूरा YouTube पे डिस्क्राइब किया हुआ है। एक पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल को अगर सही नॉलेज चाहिए तो किस तरीके से उसका स्किल सेट क्या होना चाहिए, तो इट विल गिव यू एग्जैक्टली द टाइप ऑफ आंसर दैट यू रिक्वायर, है ना। ओके सर। उसको आप थोड़ा YouTube को देखिए, उसको थोड़ा समझिए, फिर आप दोबारा से मेरे से यही सवाल पूछिए तो मैं आपको और डिटेल्स में समझाऊंगा। ओके सर। Okay, sir. Sir, can you please share the link for the YouTube? Okay, so I'll ask Tawfiq, okay, तो Tawfiq will share the link, है ना। तो Okay, sir. आप वरना एक आप सिंपल गूगल पे, एक मिनट में देखता हूँ जस्ट, सो गूगल या यूट्यूब पे जस्ट सर एक पर्सनल बात पूछूं? हाँ बेटा बोलो। सर आप MPH रिलेटेड ही काम करते हो? बेटा मैं तो यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, बट मेरे को पब्लिक हेल्थ मतलब मैं टेलीमेडिसिन, पब्लिक हेल्थ, टेक्नोलॉजी, इन सब एरिया में मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ बेटा। सर आप कम्युनिटी मेडिसिन का प्रोफेसर है? मैं कम्युनिटी मेडिसिन का नहीं हूँ, मैं ऑर्थोपेडिक्स एंड फिजिकल थेरेपी में प्रोफेसर हूँ। कम्युनिटी मेडिसिन मेरा पार्ट है काम ओके का। सर। अब इंडिया पे है अदर? नहीं बेटा मैं अब्रॉड में रहता हूँ, मैं अब्रॉड में रहता हूँ, और ये कॉलेज मैंने 2008 में शुरू किया था ताकि बच्चों को नौकरियां मिल सके, क्योंकि मैं जब स्टूडेंट था तो हमारी किसी ने मदद नहीं की थी, तो इसलिए हमको था कि हम स्टूडेंट की मदद करके उनके लिए रास्ता बना सकें। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है ना, ताकि उनको गाइडेंस मिल सके कि क्या करना है लाइफ में, है ना। तो एक मेरे ख्याल से एक YouTube चैनल बनाया हुआ है AIHMS का, है ना। YouTube चैनल, एक मिनट जस्ट लेट मी चेक। तो एक मिनट, और हमने YouTube चैनल पे, आप है ना AIHMS का एक YouTube चैनल है पूरा, तो उस YouTube चैनल पे मैं तौफीक को बोलूंगा वो लिंक आपसे शेयर कर लेंगे, ठीक है ना। तो उसमें आपको बेटा सब कुछ बड़ा क्लियरली पता चल जाएगा। ओके ओके सर, ओके। Okay, sir. ओके चलो। सर इसकी बाद सर आप जब क्लास करोगे ना, आपका एक्सपीरियंस शेयर करोगे, आप पढ़ाते बहुत अच्छे हो। अच्छा, नहीं एक्सपीरियंस तो बेटा मैं शेयर तुमसे यही इस तरीके से ही मैं आपसे शेयर ही कर रहा हूँ ना। अब जैसे अब्रॉड में, अब देखो यहाँ पे भी हेल्थ केयर है, अब हेल्थ केयर बड़ा अच्छा है, अमेरिकन सिस्टम इन्होंने सारा कट कॉपी पेस्ट कर लिया, बट जब तक देखिए आप कोई भी सिस्टम को कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बट सिस्टम लोगों से बनता है ना। जैसे जैसे मैंने जब कॉलेज शुरू किया तो मेरा एक बड़ा सिस्टम, मेरा क्लियर थॉट प्रोसेस था। मैं ये जानता था कि जो बच्चों को 90% मार्क्स आते हैं, 92, 94, 96, वो जिंदगी में कुछ ना कुछ कर लेगा। समाज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन बच्चों के लिए जो 50% से लेके 80% वाला वर्ग है, क्योंकि वो डिसोरिएंटेड है।
जब माँ बाप, जब वो बच्चा बड़ा हो रहा था 12वीं में पढ़ रहा था, तो माँ बाप ने कहा बेटा पढ़ाई कर लो, जिंदगी बन जाएगी। उसने कहा, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, उसने वो कर लिया। फिर उसको तब भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। उसको लगा यार मैं अब क्या करूं, अब आगे, अब मेरे को क्या करना चाहिए, क्योंकि एक लेवल पे जाके जो सब मेजॉरिटी बच्चों की प्रॉब्लम आती है वो स्टैग्नेट हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि अब आगे अगर मेरी आज 20,000 या 25,000 रुपए तनख्वाह है, तो मुझे 40,000 तक कैसे पहुंचना है। 40 वाले को ये नहीं पता मुझे 60,000 तक कैसे पहुंचना है। 60 वाले को ये नहीं पता मुझे 80,000 या लाख तक कैसे पहुंचना है, और कम टाइम में कैसे पहुंचना है। यस सर। ज्यादातर 95% स्टूडेंट जो है वो हिट एंड ट्रायल मेथड करके काम करते हैं। तो जो सक्सेस उनको 5 साल में मिल सकती है, वो सक्सेस उनको करीब 10-15 साल लग जाते हैं। तो मुझे ये था कि किस तरीके से हम स्टूडेंट को मोटिवेट करके, उनके दिमाग को बेसिकली गाइड करके, है ना, उसको हम ये बोलते हैं कि बेटा अपने दिमाग से नहीं चलना, मेरे दिमाग से चलना है, बिकॉज आई हैव सीन द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन 20 टाइम्स एंड यू हैव सीन। यस सर। है ना। और एक बार जब सीख जाओगे तो अपने आप उस उड़ान में अपने आप उड़ जाओगे। क्योंकि अगर आप ठीक ठाक पढ़ाई अल्टीमेटली, क्योंकि देखो हम लोग टाटा अंबानी बिरला के घरों में तो पैदा नहीं हुए भैया कि माँ बाप के पास में करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं। और भाई एक ही आपके पास में आपका एक ही पूंजी है, आपकी एजुकेशन। एंड एजुकेशन हेल्प्स टू चैनलाइज योर माइंड। अगर आपका पढ़ाई ठीक हो जाएगी, अगर आप ठीक तरीके से सीख जाएंगे, ज्ञान आपको ठीक मिल जाएगा, आपकी लाइफ अपने लाइफ बना भी लोगे, और कल को 10 और लोग की जिंदगी भी बदल डाल। ठीक है ना। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके बेटा, चलो टेक केयर।